Good morning. हैं। अगर हम इसकी तुलना की बात करें पिस्सो टॉप के बारे में, तो पिस्सो टॉप हम शीशे में देखते कहते मैं ऐसी कैसे दिख रही हूँ आज, मैं मोटी हो गई। एक बात सुनिए, भोग लगाते समय पर्दा आवश्यक क्यों है? ठाकुर जी संकोच करते हैं, और ठाकुर जी संकोच नहीं करते। आप हमारे पुष्टि मार्ग में तो ऐसा बताते हैं कि जब जैसे ही आप पर्दा करते हो भोग रखने के बाद, ठाकुर जी अकेले नहीं जीमते, सब सखान को बुलावे। आ जाओ रे भैया, आज हमारे सेवक ने देखो बढ़िया कड़ी बनाई है, और महाराज जी देखो बैगन को भरता बनाया हो, आलू की सब्जी बनाई, रोटी बनाई, आ जाओ सब रे। अब उन घरों की बात नहीं जहाँ पे केवल चना चनोरी का भोग लगता है, वहां तो ठाकुर जी खाते ही नहीं होंगे, कहा करें। सामग्री खूब बनाया करो ठाकुर जी की भोग की, क्योंकि मधुमंगल श्री रामा नहीं तो ठाकुर जी को खूब चढ़ाते हैं। ले तू कैसे घर में बैठो, कछुना बना मुझे तो रूखी सूखी रोटी खवा दे लाला, तो चल हमारे संग, तू को कहीं और ले चले। ठाकुर जी के लिए बढ़िया सामग्री बनाओ कि महाराज ठाकुर जी भी सखान को दिखाओ, देख आज खा बनाया हो या नहीं, बस पिज्जा बर्गर पास्ता मत बनाई हो। कभी कभी मन में विचार करूं, कई लोग अपने घर में पिज्जा बना दे। अरे और अद्भुतता तो देखो, एकादशी Every time I'm creating an intent, I'm creating a thought, I'm creating a word, I am throwing a ball out into the world. This is karma. And what is the law of karma states? Who creates the destiny? Another belief system that we've been living for since very long. सब कुछ जो मेरे जीवन में हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? तो we put the finger, कहते थे ना, पत्ता पत्ता भी उसकी मर्जी से हिलता है। How many of us agree with it? पत्ता पत्ता भी उसकी मर्जी से हिलता है। Everything is happening as per God's will. हाथ उठा लो। Everything is happening as per God's will. अभी तो हाथ उठाया, अभी नो। Everything is happening as per God. Every answer is right in this world. Just have an answer. Everything is happening as per God's will. पत्ता पत्ता भगवान की मर्जी से हिलता है. Is something we had heard. We learned while growing up. Let's think about it. So much is happening on the planet right now. So much is happening on the planet right now. This is all happening as per God's will. ये भगवान की मर्जी से हो रहा है. ये भगवान की मर्जी से हो रहा है. 10 seconds लीजिए. Write the destiny of your child. Just in your mind, write the destiny of your child. You are a parent. Write the destiny of your child. कितनी बार बीमार करेंगे उसको साल के अंदर? और कभी कभी बीमार होने से क्या होता है? एक बार भी बीमार नहीं करना. कितनी बार उसके जीवन में फेलियर लेकर आएंगे? कितनी बार उसका एक्सीडेंट होगा? कितनी बार उसके रिश्ते टूटेंगे? कभी भी नहीं. What kind of destiny will you write for your child? Perfect. चलो, it's easy to write a perfect destiny for our child. Write the destiny of the child of a person who's not good to you. Right? That person is not good to you. You have the power right now to cause them pain. You will still write perfect. The destiny of the child of the person who's not good to you, you will write perfect. हाँ जी? ओ चला, अच्छा ठीक है, okay. Good one. उनकी कोई गलती नहीं है, so never mind. Write the destiny of the person who is not good to you. Right. They left early morning in the car. They met with an accident in the ICU on the ventilator. Right. लिखे ना. That person was not good to you. You have the power to write their destiny. लिखेंगे. लिखेंगे. They are aged 35. They have 2 young children at home, and the soul left the body. लिखिए. नहीं. So we, ordinary human beings, at the end of Kali Yuga, with depleted soul power, writing the destiny of a person who is not good to us, is not able to write all this. And this is hardly 1% of what's happening on the planet right now. And वो भगवान जिसको हम कहते हैं विश्व कल्याणकारी, क्षमा का सागर पे, this is the destiny that he is writing. इससे अच्छा तो हम ना लिख लेते हैं. If God had to write everyone's destiny, तो सबकी destiny कैसी होती? Give one word.
We were only writing perfect destinies for them. So if Paramatma had to write the destiny, how would the destiny be perfect? Two rules will apply if God writes destiny. One, it will be perfect. Second, it will be equal. If you have two children, will you be a little biased in writing their destiny? Thoda sa. Look at the bias that is there on the planet today. One person is alive till the age of 100, the other soul is coming and is born with a disease. One is born in a family of 10, pampering, one is born and lying near the dustbin. This is God writing destiny. इतना bias? नहीं. So परमात्मा अगर भाग्य लिखेगा तो perfect लिखेगा और सबका equal लिखेगा. So we heard two belief systems. One, भगवान ने भाग्य लिखा, दूसरा हमारे कर्म से भाग्य लिखा जाता है. But similarly, we always nodded to both. किसी ने कहा भगवान ने भाग्य लिखा, हमने कहा हाँ जी. किसी ने कहा हमारे कर्म से भाग्य लिखा, हमने कहा वो भी हाँ जी. क्योंकि करना तो कुछ था नहीं, रूम से बाहर जाने के बाद क्या फर्क पड़ता है किसी ने भी लिखा. We didn't think कि दोनों कैसे राइट हो सकते हैं. Both can't be right. Choose any one of them and say okay fine, this one is right. We nodded equally to both. So now think, karam, everyone's karam is not equal. And so everyone's karam, bhagya also cannot be equal. All our karam are not perfect. And that's why everything happening in our destiny is also not perfect. So which of the two belief systems to hold on to and which one to put aside? Who's writing our destiny? Put the finger there. Who's writing our destiny? Here. You see, from Friday we started with I am the creator of my thoughts, to I am the creator of the health of my body, I am the creator of my relationships, I am the creator of my work. Last day, I am the creator of my destiny. I am the creator of my destiny. तो आज से उंगली वहां रखना. Blame game is very easy. They are the cause, they are the cause, they are the cause, and थोड़ी बड़ी चीज. There's only one person who was never the cause of anything that was not right, and that was I. And you come to Brahma Kumaris, and for everything it is. So many people, for everything you keep saying it is I, it's I, it's I. Because it looks like burden. It's not burden, it's liberation. It's power, it's freedom. It's freedom. अब फिर से बॉल पकड़ लीजिए. Let's write our destiny. My every intent, my every thought, my every word, my every behavior out there. This ball going out is karam. Intent, thought, word, behavior. Ball coming back, ball on the return journey. Situations, health of the body, people's behavior towards me, relationships, professional life, nature, state of the world. Which means everything that is happening to me. This was everything that I was creating. This is everything that is happening to me. So everything that is happening to me is destiny. Which means the ball coming. Now just create the connect and fit it here. This is what I am creating and this is what is happening to me. So what is happening to me has been decided by. So the why me gets over. हेलो. हेलो हाँ जी, सर, गुड मॉर्निंग. साक्षी बात कर रही हूँ आईसीआईसीआई बैंक से. बताइए मैडम. सर, आईसीआईसीआई बैंक में आपका एप्लीकेशन लिखा हुआ था पर्सनल लोन की रिगार्डिंग. आपने अप्लाई किया था ना सर? जी सर. कितना अमाउंट सर्च कर रहे हो? 20 लाख. कितना सर? 20 लाख. ओके सर. सैलरी कितनी सर आपकी? और नेट सैलरी अबव 1 लाख है. कितना? 1 लाख. ओके. सैलरी अकाउंट कौन से बैंक में सर? सेम आईसीआईसीआई? नहीं, वो स्टेट बैंक में SBI. और कौन सी कंपनी में वर्किंग है सर? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, IOCL. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड. करंट लोकेशन क्या है सर आपका? देवघर, झारखंड. झारखंड. एग्जिस्टिंग सर कोई लोन चल रहा है आपके सैलरी में? EMI पे कर रहे हो? सैलरी में कंपनी लोन है, व्हीकल लोन है. अभी कौन सा लोन चल रहा है सर आपका? कार लोन है.
कार लोन कौन से बैंक से दे रहे थे? नहीं, वो बैंक से नहीं लिया था, वो कंपनी से ही, कंपनी प्रोवाइड करती है हम लोग को। तो कंपनी प्रोवाइड करती है। कितना अमाउंट का देता था? वो था 12 लाख का। 10 लाख 12। EMI कितना पे कर रहे थे? उसका लमसम करीब 10,000 आसपास है, 10 या 12,000 के आसपास। 10,000। ओके, एक कार लोन ही चल रहा है, इसके अलावा भी और कोई लोन चल रहा है? तो नहीं, और कोई लोन नहीं। सिर्फ एक कार लोन चल रहा है ना? हाँ। अच्छा, आपकी डेट ऑफ बर्थ बताइए ना, हम एक बार सिस्टम पे चेक कर लेते हैं आपके रिजर्वेशन। 21 अक्टूबर 1979। 21 नवंबर अक्टूबर 19 21/10/1979। 1979। एक मिनट आप लाइन पे रुकिए, मैं चेक कर लेती हूँ। हेलो। हाँ जी, बताइए। जी सर, एक्चुअली ये जो आपका नंबर है ना, मतलब आपका जो अकाउंट है, मतलब SBI है, राइट? हाँ, तो सर एक ऐसा होता है ना कि ICICI हम प्रोसेस नहीं कर सकते कोई नहीं, बिकॉज वो ऑलरेडी मतलब वहाँ पे लॉग इन शो रहता है। मैं आपको अनदर बैंक के थ्रू प्रोसेस करवा के दूँ, सर नहीं चलेगा हो गया, आपको? नहीं छोड़ दिया, थैंक यू। तो सर विद इन 1 डे यू विल गेट द अप्रूवल। कौन से बैंक से? HDFC से सर, एक दिन में आपका अप्रूवल भी आ जाएगा सर, 1 से 2 दिन में आपको डिस्बर्स भी हो जाएगा। नहीं मैडम, नहीं चाहिए, छोड़ दिए, थैंक यू। ओके सर, ओके, थैंक यू।
Why me is over. No victim game. I threw this ball is coming to me. Now, when this ball is coming to me, means this. महाप्रभु जी जिस वंश में प्रकट हुए, उस वंश के एक आपके पूर्वज, आपके परपर दादा गुरु, और 100 सोम यज्ञ करने का भाव आपने रखा था, आपके वो 100 यज्ञ पूरे नहीं हो पाए। तो आपने कहीं लिख दिया कि मेरे वंश में जितने भी बालक हों, सबसे मेरी प्रार्थना है कि 100 यज्ञ की मैंने संकल्प लिए हैं, इतने यज्ञ हमारे हो गए, आगे जितने बालक हों वो यज्ञ करते रहें। कहते हैं 100वां यज्ञ कब पूरा हुआ? जब श्री लक्ष्मण भट्टी जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ, महाप्रभु जी के पिताजी। तो आपने जब 100वां यज्ञ पूरा किया तो आपने उत्सव मनाया और आप बड़े प्रसन्न होकर के सबसे बोले, हमारे पूर्वजों की जो इच्छा थी 100 यज्ञों की, वो अब जाकर के हमारी पीढ़ी में आकर के पूरी हुई है। अब पत्नी हम काशी जाएं और काशी के विद्वान ब्राह्मणों को भोज करा करके वहां उत्सव करें इस यज्ञ का। काशी के लिए निकले। जैसे ही आप काशी पहुंचे, लेकिन तभी एक खबर फैल गई कि मुगलों ने काशी पर आक्रमण कर दिया है। और वो बात सुनते ही आप दोनों इतने व्याकुल हो गए, क्योंकि आपकी गृहिणी इलम्मा गारू माता जी गर्भवती थी, तो हमें रात्रि में ही काशी से वापस दक्षिण जाना चाहिए। और आप रात्रि में ही वापस जा रहे थे। मध्य में एक स्थान पड़ा जिसका नाम है चंपारण्य, छत्तीसगढ़ के पास में। शमी वृक्ष के नीचे आपको थोड़ी प्रसव पीड़ा जैसी हुई और माता जी वहीं रुक गईं। और वहीं श्री इलम्मा गारू जी के गर्भ कलयुग में द्वापर प्रकट करने महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। जन्म लेते ही आपने ना तो आंख खोली, ना मुख से कुछ स्वर प्रकट किया, ना हाथ पैर हिलाए। मतलब देखने में ऐसा लगा कि मानो कोई शव हो। माता पिता बाद में विचार करने लगे, कोई चेष्टा नहीं हो रही है, कुछ भी मुख से बोल नहीं रहे हैं। खूब प्रयास किया, इलम्मा गारू मैया खूब रोने लगी। आप हृदय से लगा करके रात भर रोती रही, लेकिन तब भी कोई चेष्टा नहीं की। सुबह का समय हुआ, लक्ष्मण भट्टी जी महाराज बोले, देवी अब क्या करना चाहिए, आप ही बताओ। ये बालक तो संभवतः जीवित नहीं है। हर प्रकार से देख लिया और चेष्टाएं ना दिखने पर यही लगा कि जीवित नहीं है। गांव अभी बहुत दूर है, दक्षिण पहुंचना है। तो वहीं शमी वृक्ष के नीचे महाप्रभु जी को विराजमान किया। जाने की इच्छा तो नहीं है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। और दोनों माता पिता वहां से आगे की यात्रा पर निकल गए दक्षिण की। लेकिन आप थोड़ी ही दूर पहुंचे थे कि आपको किसी से खबर पता चली कि काशी में जो मुगल आक्रांताओं की खबर थी वो झूठी थी। काशी में कोई मुगल उगल नहीं आए हैं, काशी बिल्कुल सुरक्षित है। तब आपने विचार किया कि देखो, यज्ञ से उत्पन्न होने वाला बालक जो हमें प्राप्त हुआ वो तो भले ही जीवित नहीं है, लेकिन यज्ञ पूर्णाहुति पर हमको भोजन तो कराना ही है काशी में। तो आप दोनों वापस काशी के लिए गए। इलम्मा गारू जी के मन में आया वहीं से ही चले। लक्ष्मण भट्टी जी बोले, देवी और कष्ट होगा, उस स्थान को देखोगी, वृक्ष को देखोगी, और पीड़ा होगी। लेकिन माँ तो माँ है, नहीं वहीं से चलिए ना एक बार, मैं दूर से ही देख लूंगी। जैसे ही आप वहां से निकले, तभी क्या देखते हैं कि शमी वृक्ष के नीचे अद्भुत अग्नि प्रज्वलित हो रही है। और अग्नि देख करके आप दोनों भयभीत हो गए, ये अग्नि कैसे। और जैसे ही दौड़ करके जाकर के देखा तो चारों तरफ अग्नि का मानो जैसे एक पात्र हो, और उस पात्र के मध्य में श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज नेत्र भी खोल रहे हैं, किलकारी भी भर रहे हैं, अपने हाथ भी चला रहे हैं, चरण भी चला रहे हैं। जो एक बालक चेष्टा होती है वो सब चेष्टाओं का करते। बोले ये सामान्य बालक नहीं, पैसे पहले आए थे इसलिए इनका ध्यान चल रहा था तुम्हारे गर्भ में। वो ध्यान कुछ दिन का अवशेष रह गया था, इसलिए जन्म लेते भी वो ध्यान में ही थे। अब वो ध्यान पूर्ण हुआ है। आप दोनों जैसे समीप गए, अग्निदेव शांत हो गए और नन्हे से श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज, सद्दू पाने नाम के एक ब्रजवासी, उनकी खूब सारी गैया, और उन्हीं गैयाओं में एक गैया वो थी जो नंद बाबा की 9 लाख गैयाओं की ही वंशधर है। उसकी बेटी की बेटी की बेटी की बेटी की बेटी चली आई। तो सद्दू पानी की गैया सब चाहती हैं गिरिराज जी चरवे के काजे,
उनमें से एक सबसे सुंदर गैया जाके दुग्ध में ते नेक नेक सुगंधी आयो करती। वो गैया कहीं एकांत में जाकर के सबरो दूध बहाया वे अपनो, लौट करके शाम को जब आमे सद्दू पाने दूध निकारे तो वहां दूध नहीं। सद्दू पाने के जो मेरी सबसे कुशल गैया है और यही को दूध कोई चोरी कर ले चोर, मैं कल पीछे जाऊंगा डंडा लेके देखूं तो सही कौन दूध पीवे। सद्दू पाने पीछे पीछे गए तो क्या देखा, श्री गिरिराज जी के ऊपर एक विशेष स्थान, वहां पर वो गैया खड़े होकर के अपने थनों से संपूर्ण दुग्ध का बिना हाथ के स्पर्श के प्रवाह कर देती। सद्दू पानी ने दौड़ करके जाके देखा, कुछ शिलाओं को जब हटाया तभी क्या देखते हैं, श्रीनाथ जी का सुंदर स्वरूप श्री गिरिराज जी से प्रकट हो गया। और जब वह स्वरूप प्रकट हुआ, सद्दू पाने गए, बोले जय जय, आपको कहाँ पवाऊं, कहाँ भोग लेके आऊं, आप आज हमारे घर ठाकुर जी पधारे, हमारे ब्रज में ठाकुर जी प्रकट हुए। ठाकुर जी बोले मैं तो केवल दूध पीऊंगा, तेरी लाली है बात कहते रोज मुंह को दूध कोई भोग लगाया करेगी, अन्न तो मैं तब पाऊंगो जब श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज ब्रज आएंगे और आकर के मुंह को अपने अंक से लगावेंगे, और वही जब मेरा भोग लगावेंगे तभी मैं अन्न पाऊंगा, नहीं तब तक केवल दूध पान करूंगा। इसको अगर पयोव्रत कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। वही वल्लभाचार्य जी का आज यहाँ प्रादुर्भाव। बोलो श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु की जय। लम्मा गारू मैया और श्री लक्ष्मण भट्ट जी आपको लेकर के फिर काशी गए। धीरे धीरे आप बड़े हुए, 13 साल की अवस्था में ही संपूर्ण वेद शास्त्र पुराण आदि का आपने अध्ययन कर लिया। काशी में रहते थे, विद्वानों की भूमि, विद्वानों से पढ़ते रहते थे। सब अध्ययन करने के बाद में आप प्रकांड विद्वान हो गए। पंढरपुर गए महाप्रभु जी, आप वहां बैठ करके सुंदर दिव्य पाठ कर रहे थे भागवत जी का। इतने में ही क्या देखते हैं, सुंदर चंदन की सुगंधी आ रही है। तभी आपने नेत्र खोल करके इधर उधर देखा तो सामने श्री पंडरीनाथ भगवान प्रत्यक्ष खड़े, और प्रत्यक्ष खड़े होकर के आपको दर्शन दे रहे थे। महाप्रभु जी ने आपको प्रणाम किया, प्रणाम करके आज्ञा करें भगवान, आप बड़े आनंद में विराज रहे हैं। बोले हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं, आपका पाठ सुनकर के हमारा चित्त नहीं लग रहा था मंदिर में, तो दौड़े चले आए आपके पास। हाँ प्रभु जी बोले आज्ञा करें। बोले अच्छा आज्ञा कर दूं? हाँ कर दो, देख लेना माननी पड़ेगी फिर हमारी आज्ञा। बोले आप जो कहेंगे नाथ सब मानेंगे, स्वीकार करेंगे, आज्ञा कीजिए। पंडरीनाथ भगवान ने आज्ञा की तो आप यहाँ से वापस जब काशी जाएं, जाकर के विवाह कीजिएगा, गृहस्थाश्रम लीजिएगा। हमारी इच्छा है कि आप गृहस्थाश्रम में प्रवेश करो। महाप्रभु जी तो बिल्कुल शांत, बोले अरे ये तो मेरे विचार में ही नहीं आया, ये तो आपका खेल है कि भक्त जो सोच लेता है कि ये मुझे करना है तो वो ना कर पावे, उसकी पूरी योजना आप बनाते। मैं कैसे चूक गया आपसे? अब तो ठाकुर जी आपने हमको बांध दिया। ठाकुर जी बोले आपने हमको वचन दिया है, जो हम मांगेंगे आप दोगे। हम आपसे मांग रहे हैं आप गृहस्थाश्रम में प्रवेश करो, विवाह करो। वल्लभाचार्य जी बोले आप अगर भगवान हो तो हम भी तो भक्त हैं। भगवान को भगवान बनाता कौन है? भक्त ही तो बनाता है। आप अगर चतुर हैं तो हम भी चतुर शिरोमणि हैं। नाथ आपकी इच्छा पूरी मैं करूंगा, लेकिन बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। ये तो हमारी बात नहीं हुई थी। तो बोले आपने भी पता आज्ञा करने से पहले थोड़ी बता दिया था कि गृहस्थाश्रम में, अब तो सब बात हो गई, अब तो यही होगा। मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा, आप मेरी इच्छा पूरी करो। ठाकुर जी बोले क्या इच्छा है? बोले आपके कहने से विवाह मैं कर लूंगा, लेकिन पुत्र रूप में आप ही मेरे यहाँ आओ तो ही विवाह करूंगा। विवाह करो, हम पुत्र बन के आते। और श्री विठ्ठल भगवान की आज्ञा से काशी के ही श्री देव भट्ट जी की कन्या, उनके साथ में विधिवत आपका विवाह संपन्न हुआ। कुछ समय बाद सपरिवार आप गोकुल में विराजमान हुए। आपके यहाँ
दो पुत्रों ने जन्म लिया। एक हुए श्री विठलनाथ जी और दूसरे हुए श्री गोकुलनाथ जी। ये दो पुत्र के रूप में आपके यहाँ पुत्र पधारे, जिनमें श्री विठलनाथ जी जो हैं ये साक्षात श्री पंडरीनाथ भगवान है, वही पुत्र रूप बन करके आए, इसलिए आपने उनका नाम ही रखा है विठल। तो गोकुल में एक दिन श्री यमुना जी के तट पर बैठे थे, तभी आप क्या देखते हैं कि यमुना जी के पल्ली पार श्याम वर्ण के सुंदर छवि का दर्शन किया। कभी कहीं जावे कभी कहीं जावे, इस तरह ठाकुर जी मचलते हुए चल रहे हैं और पीछे पीछे महाप्रभु जी चल रहे हैं। और तभी वह स्वरूप आपको लेकर के आया श्री गोवर्धन। Oh, yeah. Oh. Cheers, brother. Good morning, sir. And good morning, bhai. Good morning. Good morning. दोस्तों, चखने में चखने पे चर्चा पे आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई। सीपैक में आपका स्वागत है। मूंगफली आ जाने देते हैं सर एक सीपैक में। यार मैं कल मूंगफली का पैकेट ही मंगवा देता हूँ। तो पहले इज्जत देते हैं, पहले इनके हाथ ऐसे जाते फिर मुड़ जाते हैं। देख रहा हूँ तो फुल रिस्पेक्ट दी जा रही है। हाँ बताइए सर। पाकिस्तान से हाँ सॉरी सर, आप सर म्यूजिक बुलवा देते हैं। जो है म्यूजिक कल से हम ये बोलेंगे म्यूजिक जो है ये ज्यादा जरूरी है। म्यूजिक जो है बताओ सर। खबर वही पाकिस्तान से। पाकिस्तान के फर्रुखाबाद में एक 125 साल पुराना गुरुद्वारा मतलब तोड़ने की खबर आ रही सर वहाँ। कितनी शर्म की बात है, ये लाहौर से थोड़ा सा आगे फर्रुखाबाद और गुरुद्वारा साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह सभा, उसको तोड़ दिया पाकिस्तानियों ने। एक तो जब सिखों ने इसका विरोध किया और जो हिंदुओं ने विरोध किया तो उन्होंने बोला नहीं ये तो 80 साल से यहाँ पे कोई नहीं है। ये सब झूठ बोलते हैं पाकिस्तानी। और मैं आपको बताता हूँ क्यों तोड़ते हैं मंदिर, क्यों तोड़ते हैं गुरुद्वारे, तोड़ते क्यों है। एक तो जमीन घेरना, ये लाहौरी पास टाइम है जमीन घेरना। और दूसरी एक और बात है कि सबसे बड़ी बात, वो जो बिजनेसमैन ने तोड़वाया, ठीक है ना, बिजनेसमैन ने तोड़वा दिया, जो बोला कि भाई ये बिजनेसमैन जिसने वो तोड़वाया, उसको खुद किसी मौलवी ने बोला होगा कि देख तू जन्नत जाएगा, तूने काफिरों की जगह तूने तोड़ दी। जहां पे बुत थे, जबकि गुरुद्वारा साहब में तो गुरु ग्रंथ साहब होती है और जो सम्मानीय गुरु साहब होते हैं उनकी फोटोग्राफ, मैंने तो यही देखा है। तो उन्होंने तोड़ दिया, उसको बोला होगा कि तू जन्नत जाएगा, तो इस्लाम की खिदमत कर रहा, उसने तोड़वा दिया। तो ये चीज है। बीच में कई लोग आए हैं इसमें, यूके बोल रहा है कि हम पैसा देंगे रेस्टोरेशन का। हेरिटेज नहीं, इट्स अ रिलीजियस प्लेस, हेरिटेज बाद में है।
आप समझ रहे हैं? तो पाकिस्तान में जितने भी मंदिर थे पोस्ट पार्टीशन, उन्होंने ज्यादातर तोड़ दिया पाकिस्तान में। आपको पता है ये जानबूझ के ऐसा करते हैं पाकिस्तानी, और जब इनको जूते पड़ते हैं फिर ये रोते हैं, फिर ये विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। पाकिस्तानी विक्टिम कार्ड में नंबर 2 है पूरी दुनिया में। नंबर 2 पे इनका स्पॉट है पाकिस्तानियों का। सीखते नंबर 1 वालों से ही, सीखते नंबर 1 वालों से कि पहले गलत करो, जब चप्पल पड़े तब रोना, तब खूब जोर दहाड़ मार मार के रोना और विक्टिम कार्ड प्ले करना। ये कोई लाहौरियों से सीखा, लाहौरी चैंपियन है इसमें विक्टिम कार्ड प्ले करने में। आपने मंदिर तोड़े, आपने गुरुद्वारा साहब तोड़ा। कराची में एक मंदिर था, इन्होंने उसके ऊपर पब्लिक टॉयलेट बनाया जानबूझ के, ठीक है। ऊपर वाला देख रहा है, ठीक है। अब पानी नहीं है इनके पास, तो ये चीज है। मुझे एक बात ही समझ में नहीं आई, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया ने भी बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया उसके ऊपर और अपनी प्रोटेस्ट लॉन्च करी। जाहिर सी बात है, करनी भी चाहिए। इंग्लैंड ने भी कुछ बोल दिया कि हम पैसे वैसे दे देंगे। ये खालिस्तानी कहां मर गए, मुझे एक बात समझ में नहीं। ये जो खालिस्तानी है वो कहां मर गए अभी तक मुझे पता नहीं लगा। ये कहां मर गए? मैं पूछना चाहता हूं, ये पन्नू वन्नू टाइप के जो हैं फ्रॉडी, 2 नंबर के जेब कतरे, क्यों अपने बाप के खिलाफ बोलने में तुम्हें बुरा लग रहा है, डर लग रहा है कि फंडिंग बंद हो जाएगी? जो ड्रग का पैसा तुम लोग लेते हो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस से, क्यों नहीं बोलते? मुझे चाहिए पन्नू का वीडियो 24 घंटे के अंदर, तब मैं मानूंगा कि हाँ बंदे बताना। जितने भी खालिस्तानी है, ये कनाडा में खालिस्तान का झंडा लेके जाओ। गुरुद्वारा साहिब 125 साल पुराना, हिस्टोरिकल, रिलीजियस नंबर 1, नंबर 2 हिस्टोरिकल, कल्चरल, उसको तोड़ दिया। सिखों का एक जो कहते हैं कि देखो ना भाई आगे बहुत पावन एक गुरुद्वारा, उसको इन्होंने खंड खंड कर दिया। सारे खालिस्तानी चुप हैं, क्योंकि बाप पॉकेट मनी नहीं देगा और बाप है खालिस्तानियों का ISI। ये इसकी सच्चाई है बस। बानू तो काफी दिनों से दिख भी नहीं रहा है, कहीं थे तो नहीं हो गया हो? पता नहीं पर अब आपने अपील की है तो क्या पता निकल आए उसमें। मैं चाहता हूं कि ये जितने भी खालिस्तानी हैं, चाहे अमेरिका में है, चाहे यूरोप में है, चाहे कनाडा में है, कहीं पर भी है, एक साथ आवाज बुलंद करके बोले कि ये जो गुरुद्वारा साहिब पाकिस्तान में टूटा है, राइट, इसको हम कंडेम करते हैं और पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी फौज, आसिफ मुनीर इसकी माफी मांगे, ठीक है, और फिर दोबारा से ये गुरुद्वारा साहब को बनाया जाए उसी इज्जत के साथ, उसी रिस्पेक्ट के साथ, और सिख कम्युनिटी से माफी मांगी जाए। दिस इज व्हाट आई वांट। ये स्टोरी है। चलिए और सवाल कोई? सर, कल भारतीय सेना अध्यक्ष 31वें धीरज सेठ जी, उन्होंने चार्ज संभाला और पाकिस्तान में सर खलबली मची इसको लेके भी, और जो है जी हाँ दोस्तों, तो वो आगे सर उन्होंने बोला कि चलो इधर लगा लो, आप आगे बढ़ो ना। सुन लेते हैं सर। whoever Indian Army chief is, उनकी से तो होती है थोड़ी बहुत सिस्टम के अंदर। although इंडिया के अंदर जो प्राइमरी डिसीजंस हैं वो इंडिया की प्राइम मिनिस्टर लेते हैं, और मोदी के सामने ही मोदी के ही आदेश पालने हैं। कहना क्या चाह रहे हैं जो पाकिस्तान को अपने नजर में रखते हुए? देखिए, उनकी भी गलती।
दोस्तों ऐसे 100 नाम हैं भारत और पाकिस्तान से जिन्होंने चिट्ठी लिखी है, उसको साइन किया है। एक कॉपी गई है मोदी जी के पास और एक कॉपी गई है शहबाज शरीफ के पास। और ये जो चिट्ठी है वो ये क्लेम करती है कि जो कॉन्टिन्यूड हॉस्टिलिटी है, यानी कि लगातार जो दुश्मनी है भारत और पाकिस्तान के बीच में, इसको खत्म होना चाहिए। अब ये कौन कौन लोग हैं जिन्होंने ये चिट्ठी साइन करी है, ये चाहते क्या हैं? जब आप नाम सुनेंगे तो आपको चक्कर आएंगे, और जब आप इनकी डिमांड सुनेंगे तो हो सकता है फिर आप खड़े न रह पाए, आपको कुर्सी लेके कुर्सी पे बैठना पड़े। अब ये देखिए साहब, बात यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में लगातार एक दुश्मनी का माहौल है, लिहाजा पीस होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। तो इन लोगों ने ये साइन करा है पिटीशन और बोला है कि साहब ठीक है, मोदी जी को लिख दिया, ये तो मुझे समझ में आता है, शहबाज शरीफ किस काम का है आई डोंट अंडरस्टैंड, लेकिन इन्होंने लिख दिया है। तो दोस्तों वो कौन कौन लोग हैं मैं उनके नाम बताऊंगा, स्क्रीन पे देखिए उनकी खूबसूरत शक्लें। ओपी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, मीर वाइज, उमर फारूक, महबूबा मुफ्ती, मनोज झा, हुमायूं कबीर, एएस दुल्लत। ये तो हो गए दोस्तों जो भारत के नगीने हैं। अब मैं दोस्तों पाकिस्तानी नगीनों से आपका ताल्लुक करवाता हूँ। स्क्रीन पर देखिए इनके खूबसूरत चेहरे। खुर्शीद महमूद कसूरी, अशरफ जहांगीर काजी, इस्फनियार भंडारा, परवेज खुदबॉय और भी कई ऐसे नाम, ये मुख्य तौर पे यही नाम थे। अब इन लोगों ने बड़े जोशो खरोश के साथ ये चिट्ठी विट्ठी साइन करी कि ये होना चाहिए। दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक बात ध्यान रखिएगा, इनकी डिमांड्स क्या है ये मैं आपको अगले 1 मिनट में बताऊंगा, 2 मिनट में बताऊंगा, लेकिन जब भी ऐसी कोई चीज होती है इसको बहुत ही शक की नजर से आप देखिए। मैं ये नहीं कह रहा कि जो भारत के लोग हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो देश के गद्दार हैं या दुश्मनों के साथ मिले हुए हैं। मैं ये कह रहा हूं कि समटाइम्स पीपल इवन एट अ वेरी सीनियर लेवल आर एक्सट्रीमली नाइव। इनको जो चूरन खिलाते हैं ये वो चूरन खा लेते हैं, राइट। मैं रिपीट नहीं करना चाहता कितनी बार भारत ने दोस्ती करी पाकिस्तान के साथ, लेकिन यार पाकिस्तान कुत्ते की पूंछ है। 12 साल नली के अंदर रखोगे ना, जब निकलेगी टेढ़ी की टेढ़ी। पाकिस्तान सीधा नहीं हो सकता, एंड आई थिंक इंडिया हैज स्टॉप्ड ट्राइंग। तो ये जो लोग हैं, ये जो 100 महानुभाव हैं, इनकी डिमांड्स क्या है? बड़ी इंटरेस्टिंग डिमांड्स हैं। स्क्रीन पर देखिए इनकी डिमांड्स क्या है दोस्तों। रिस्टोरिंग फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में पूरे के पूरे डिप्लोमेटिक। ये कहते हैं कि आप ट्रंप को जवाब दें, ट्रंप क्या गालम गलौज करेंगे ट्रंप के साथ? ट्रंप तो हिला हुआ ऊपर से यार, ट्रंप का दिमाग खराब है। लगने दो जिसको बुरा लग रहा है। मैं फिर से बोलूंगा, मोदी जी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही इज नॉट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पैलेस्टीन। सॉरी, कर रहे हैं जितना कर रहे हैं, दवाई चाहिए। हमने कौन सा बम मारा यार पैलेस्टीन के ऊपर? बात किससे करनी है राहुल जी, आप ये बता दीजिए, मुझसे बात करें। इजरायली बुरे हैं, सऊदी वाले भी बुरे हैं, यूरोपियंस भी बुरे हैं, कैनेडियंस भी बुरे हैं, अमेरिकन भी बुरे हैं, सब गंदे लोग हैं। हमें बात किससे करनी है बता दीजिए कि साहब इससे दोस्ती कर लो। सबकी हेल्प करते आप तभी हैं जब आप खुद फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं और आप मिलिटरली स्ट्रॉन्ग हैं। मैं हूं मेजर गौरवानी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग। दोस्तों हम लोग, आपको पता है कि हम पॉलिटिकल कंटेंट हमारी एक बात लिख लीजिएगा, और लिख ना सको तो इसको मरते दम तक याद रखिएगा। देवादिदेव महादेव से जिसने भी कृष्ण भक्ति के अलावा, राम भक्ति के अलावा, प्रेम लक्षणा भक्ति के अलावा कुछ और मांगा, उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। आपने यदि भक्ति के अलावा महादेव से कुछ भी मांग लिया तो आपका नाश निश्चित है। कई लोग मेरी बात का खंडन कर सकते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल अटूट सत्य है, और इस पर स्टडी करके स्वयं देख लीजिएगा। मैं तो आज पूरे रास्ते यही सोचता आ रहा था, बल्केश्वर महादेव का स्मरण करके। भक्ति के अलावा महादेव से जिसने जो मांगा उसको वो वस्तु मिली तो सही, पर नाश करने वाली मिली। रावण ने सोने की लंका मांगी, मिल तो गई, लेकिन क्या हुआ? मिल तो गई पर जल गई, खाक हो गई। किंतु
विनती करते जाना, सब याद दिलाऊंगा आपको। महादेव से जिसने भी भक्ति के अलावा कुछ और मांगा उसकी उल्टी गिनती ही चली है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि हमारी जीवन की परिस्थिति सही हो जाए। ऐसा मत कहा कीजिए कि परिस्थिति सही हो जाए। महादेव से जाके विनती करो, जिसमें मेरा भला हो वो करिए, जिसमें मेरे परिवार का भला हो वो करिए, जिससे मैं आपको प्राप्त कर सकूं या आपके प्राणनाथ श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकूं वो करिए। अब उसमें चाहे जो मुझे सब स्वीकार है। जीवन की हर परिस्थिति को प्रसाद मान करके स्वीकार करना प्रारंभ कर दीजिए। महादेव का प्रसाद है, ठाकुर जी का प्रसाद है, ऐसा स्वीकार करो। आप जाकर के कहेंगे नहीं यही दीजिए यही दीजिए यही दीजिए, तो महादेव दे तो देंगे, लेकिन उसका नाश निश्चित है। सोने की लंका दे दी रावण को, पूरी लंका जल गई। सारे देवता आकाश से देख रहे थे, महादेव भी नंदी पर बैठ करके देख रहे थे, हंस रहे थे, बढ़िया हुआ। देवताओं ने कहा आपने ही तो दी थी इसको, आप क्यों हंस रहे हो? महादेव बोले राम विहीन जो भी वरदान में देता हूँ, भक्ति विहीन जो भी वरदान में देता हूँ, उसमें मेरी प्रसन्नता नहीं होती। वो मैं केवल पीछा छुड़ाने के लिए देता हूँ, तो लेके जा और मेरा पीछा छोड़। इसलिए अच्छा है जल गई, नाश ही इसका निश्चित था। किसी ने रावण को जाके बता दिया तुम 24 घंटे राम जी का स्तोत्र गाते रहते हो, वो महादेव का स्तोत्र गाते रहते हो, प्रणाम करते रहते हो, जब तुम्हारी लंका जली थी वो भी हंस रहे थे। तो रावण लंका से कैलाश गया और कैलाश में जाकर के शिकायत करता है महादेव से। जी की जगह आज का कोई बालक रहता ना तो कहता मुनिवर हम आपका काम कर दिए, हमको घर की बड़ी याद आ रही, हमको घर भिजवा दीजिए। लेकिन राम जी कुछ बोले नहीं, वहीं बने रहे। क्यों? जीवन में जब हमारे विषय में कोई निर्णय लेने वाला हो तो स्वयं को निर्णय लेने से बचाना चाहिए। आप समझ रहे मेरी बात को? आपके विषय में यदि कोई सोचने वाला है तो फिर उसी को सोचने दिया जाए, अपने न दिमाग लगाया जाए। जब एक ही व्यक्ति के विषय में सब लोग सोचने लगेंगे तो वो व्यक्ति कहीं नहीं पहुंच पाएगा। राम जी जानते हैं कि मेरे लिए सोचने के लिए विश्वामित्र जी हैं। पिताजी ने चलते समय कहा था कि तुम मुनि पिता आन नहीं को। दशरथ जी ने चलते समय विश्वामित्र जी से कहा कि आज के बाद आप ही मेरे बच्चों के पिता हैं। इसलिए राम जी निश्चिंत है जो आज्ञा हो। और जैसे विश्वामित्र जी ने कहा प्रभु मिथिला चलेंगे, राम जी बोले जो आज्ञा। और यहीं से कथा प्रारंभ होती है। धनुष सोने रघुकुल
भगवान चले, आगे आगे विश्वामित्र जी चल रहे हैं, उनके पीछे श्री राम जी के पीछे बोलिए लक्ष्मण जी। बक्सर से मिथिला की ओर प्रस्थान हुआ। थोड़ी दूर चलने के बाद अचानक राम जी एक स्थान पर रुक गए। विश्वामित्र जी ने पूछा, क्या हुआ राम जी? एक दिशा की ओर हाथ से इशारा करके राम जी ने पूछा, गुरुदेव इस स्थान को देख करके ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर पहले किसी ऋषि मुनि का आश्रम रहा होगा। विश्वामित्र जी बोले, खंडहर है। खंडहर देख करके आपको कैसे लग गया कि यहाँ पर आश्रम रहा होगा? राम जी बोले, गुरुदेव स्थान सुहावन तो नहीं है, लेकिन यहाँ की ऊर्जा बता रही है कि ये पावन है। सुहावन नहीं है लेकिन पावन है। और समझिएगा, सुहावन होने में और पावन होने में बड़ा अंतर है। हम घर को सुहावन बना सकते हैं, कैसे? रुपया खर्चा करके, सजा करके घर को सुहावन तो बना दीजिएगा, लेकिन वो घर कितने दिन तक सुहावन बना रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप करोड़ों लगाकर मकान बनाइए, वो मकान कब तक सुंदर बना रहेगा? एक ना एक दिन उसको खंडहर बनना है तो बनना है, बनेगा ही बनेगा। लेकिन रुपए से घर पावन नहीं हो सकता। घर को पावन करने के लिए उस घर में बैठकर भजन करना पड़ेगा, और जब हम भजन से जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वो ऊर्जा हमारे घर को पावन बनाएगी। आप समझ रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं? घर सुंदर बनेगा तो एक दिन मिट जाएगा, लेकिन एक बार यदि आपके घर की ऊर्जा पावन हो गई तो खंडहर होने के बाद भी उसकी पवित्रता समाप्त होने नहीं वाली है। वो चीख चीख के बताएगी कि इस स्थान पर पहले कभी भजन किया गया है। और उस भजन के आकर्षण ने मेरे राम जी को आकर्षित कर दिया। राम जी खड़े हो गए, कहे, मुनिवर यहाँ पहले किसी ऋषि का आश्रम रहा होगा, परंतु आज दशा बिगड़ी है। न कोई नर, न कोई नारी, न कोई पशु, न कोई पक्षी। और ये आश्रम के स्थान के बीच में ये शिला कैसी रखी हुई है? वो शिला कौन थी? कौन थी? माँ अहल्या। विश्वामित्र जी ने बताया, राम गौतम नारी उपल देह धरि चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। राम जी बोले, गुरुदेव ये शिला कौन है? विश्वामित्र जी ने पूरी कथा सुनाई। राम, ये गौतम ऋषि की अर्धांगिनी है अहल्या। श्राप के कारण पत्थर की बनी हुई है, और इनके पति गौतम ऋषि ने ही इनको श्राप देकर पत्थर का बनाया है। और आप जानते हैं राम, आपके चरण में जो रज लगा है, धूल लगा है, उसी धूल के स्पर्श से इनके श्राप का मोचन भी बताया गया है। कहे तो केवल आपकी प्रतीक्षा में यहाँ पर बैठी हुई है युगों से। अस्तु हे राघव कृपा क्या राम जी को पता नहीं था कि वो कौन है? बोलिए, पता नहीं था ना?
अरे मैं पूछ रहा हूँ, पता था ना? जोर से बोलिए, पता था। राम जी को ये नहीं पता था कि हमारे पांव के धूल से इनकी मुक्ति है? पता था ना? तो राम जी ने आकर सीधे स्पर्श क्यों नहीं करा दिया? ये प्रश्न है। जब प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, भगवान सब जानते हैं, तो राम जी ने आकर सीधे स्पर्श क्यों नहीं कराया? एक दिन मैं इसको सोच रहा था बैठे बैठे, तो जो भाव निकला वो मैं आपको सुनाऊं। पहली बात, राम जी अकेले यात्रा नहीं कर रहे हैं, राम जी विश्वामित्र जी के साथ यात्रा कर रहे हैं। तो पहला कारण है, जब अपने से बड़े के साथ कहीं यात्रा में रहते हैं तो अपने मन से कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये राम जी का संस्कार है, इसलिए भगवान ने नहीं किया। दूसरी बात, भगवान का एक स्वभाव है, क्या? राम जी ने शबरी मैया को जब 9 प्रकार की भक्ति बताई, तो पहली भक्ति क्या बताई? प्रथमा भगति संतन कर संगा। राम जी ने पहली भक्ति बताई कि जीवन में संत का संग हो जाए, आपकी पहली भक्ति पुष्ट हो गई। किसका संग हो जाए? संत का संग। और याद रखिएगा, संत का संग शरीर से नहीं करना है, संत के पीछे पीछे नहीं डोलना है। संत का संग का अर्थ है संत द्वारा सत्संग में दिए गए सत्य उपाख्यान का जीवन में अनुसरण कर लेना, ये संत का संग है। संत के द्वारा कही हुई बातों को मान करके जीवन में उतार लेना, ये संत का संग है। संत के संगे संगे टहर रहे हैं, अब बतिया एको नहीं मान रहे, ये कौन संग है वो? तो राम जी ने संत का संग क्यों बताया? पहली भक्ति। दर्शन करिए, डॉक्टर जब कोई दवाई देता है प्रिस्क्रिप्शन पर लिख करके, तो हम ये विचार नहीं करते कि ये दवाई रिएक्शन तो कहीं नहीं कर देगा, काम करेगा कि नहीं करेगा, विचार करते हैं? नहीं, डॉक्टर ने जो कुछ भी लिख दिया, हम विश्वास के साथ उसको लेकर के पा लेते हैं। उसी प्रकार संत जब किसी पर कृपा करने के लिए भगवान से कही देते हैं ना, तो फिर भगवान उस जीव का गुण दोष का विचार नहीं करते हैं, उस जीव पर अपनी कृपा की वर्षा कर देते हैं। ये भगवान का स्वभाव है, ये भगवान का स्वभाव है। इसलिए भगवान बोले संत का संग करिए, संत के संग में रहिएगा। तो संत जब भगवान की आराधना करने बैठेंगे तो कहेंगे, प्रभु एक और आपका परिवार वहाँ पर है, बहुत अच्छा परिवार है, तनी उस पर भी कृपा की वर्षा बना के रखिएगा दृष्टि की, तो भगवान की कृपा दृष्टि हो जाएगी। ये दूसरा कारण। और तीसरा कारण मैं बताऊं, राम जी गुरुदेव भगवान श्री विश्वामित्र जी को जगत में बड़ाई देना चाहते हैं, सम्मान दिलाना चाहते हैं, कि आगे चलकर ये जगत कहे कि विश्वामित्र जी ने राम जी को बुलाकर अहिल्या जी का उद्धार करा दिया, इसलिए राम जी ने अपने मन से वहां स्पर्श नहीं कराया। राम जी का स्वभाव है, राम जी तो बैरियों को भी बड़ाई देते हैं, बैरियों राम बड़ाई, बैरियों का भी सम्मान करते हैं, बैरी भी राम जी की प्रशंसा करते हैं। कहाँ मिलेगा वो? जैसे विश्वामित्र जी ने कहा, श्री राघव जी ने अपने चरण रज का स्पर्श कराया माँ अहल्या के शिलावत शरीर पर। जड़ होकर बैठी माँ अहल्या, चरण रज स्पर्श होते चैतन्य हो गई, उठ के राम जी के आगे खड़ी हो गई। अच्छा, आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, पूछूं?
करिए कोई सालों से अपना आंख बंद किया हो, सालों से, और सालों के बाद उसकी आंख खुले और आंख खुलते सामने साक्षात भगवान दिखाई पड़ जाए हो, उस जीव की क्या गति होगी। माँ अहल्या युगों से आंख बंद करके बैठी हैं, और जब आंख खुला तो सामने साक्षात राघव जी खड़े थे। शरीर के एक एक रोम खड़े हो गए, शरीर कांपने लगा, नेत्र से झरझर अश्रु निकलने लगे और भाव विह्वल होकर माँ अहल्या राम जी के चरणों में गिर पड़ी। भगवान ने उठाया उनको। अहिल्या जी कहती, प्रभु मैं नारी अपावन, प्रभु जगपावन, रावण रे पूजन सुखदाई। इस अपावन को आप पावन करने के लिए आ जाए हैं। यहीं से राम जी का नाम पड़ा पतित पावन। अहिल्या जी बोली, प्रभु आप आज से पतित पावन है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। पतित पावन आप हो गए, अब यहाँ से आगे बढ़िएगा तो मिथिला में जाकर आप सीता राम बनिएगा। प्रभु आपका नाम पतित पावन। राम जी बोले कि मुझे पता चला है कि आपके पति ने आपको शाप देकर पत्थर का बनाया था। अहिल्या जी बोली, ये बात आपसे किसने बताई? राम जी बोले, गुरु जी बोल रहे थे, विश्वामित्र जी। अहिल्या जी हाथ जोड़कर बोली, प्रभु मुझे भी अब तक यही लग रहा था कि मेरे पति ने मुझे शाप दिया है, लेकिन अब जाकर पता चला है कि मेरे पति ने शाप नहीं दिया था, मेरे पति ने मेरा उद्धार किया था। प्रभु यदि शाप न मिला होता तो आज आपका दर्शन कैसे प्राप्त होता? देख, बड़ी गूढ़ बात। श्रेष्ठ का क्रोध भी हमारा कल्याण करता है, ये प्रमाण है। श्रेष्ठ यदि हम पर क्रोधित भी हो जाए ना तो हमारा कल्याण ही कल्याण करेगा। गौतम ऋषि ने शाप दिया, उस शाप का परिणाम हुआ कि माँ अहल्या को आज रघुनाथ जी का दर्शन प्राप्त हो गया। अहिल्या जी कहती, प्रभु मैं मति से भोरी हूँ, मुझे मांगने का ढंग नहीं आता, लेकिन इतना मुझे पता है कि मेरे से अपराध क्यों हुआ था। राम जी बोले, क्यों हुआ था अपराध? अहिल्या जी बोली, प्रभु मेरा मन आपके चरणों में नहीं लगा था, इसलिए जगत में फंस गया था और मेरे से अपराध हो गया था। अब एक मेरी प्रार्थना है, बिनती प्रभु मोरी, मैं मति भोरी, नाथ न मांगू क्या वरदान चाहिए? पद कमल परागा, रस अनुरागा, मम मन मधुपा करे पाना। भगवान के चरण को कमल का पुष्प बताया गया है। आप लोग स्तुति गाते हैं, नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंज यानी कमल। भंवरा फूल के चारों ओर मंडराता है दिन रात। क्यों मंडराता है? बोलिए। उस फूल के भीतर जो पराग है, रस है, उस रस को पीने के लिए भंवरा फूल के चारों ही मंडराता रहता है। माँ अहल्या बोली, प्रभु यदि आपके चरण कमल के पुष्प है
तो आज से आप अहल्या के मन को भंवरा बना दीजिए प्रभु। मैं चाहती हूँ जैसे भंवरा पुष्प पर मंडराता है, आज से मेरा मन आपके चरण कमल पर मंडराता रहे, इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। राम जी बोले चरण में ही क्यों, चरण में ही क्यों? अहिल्या जी बोली प्रभु थोड़ा बहुत मुझे भी पता है, ये वही चरण है जिनसे गंगा जी प्रकट हुई है। गंगा जी का प्राकट्य शंकर जी की जटा से नहीं हुआ है। गंगा जी प्रकट हुई भगवान के दाहिने पांव के अंगूठे के नाखून से, दाहिने पांव के अंगूठे के नाखून से, नाखून के भी अग्र भाग से, अगले भाग से भगवान वामन को बांधने के लिए त्रिविक्रम रूप धारण किए थे। और जैसे भगवान का पांव ब्रह्मलोक को पार कर रहा था, ब्रह्मा जी कमंडल से जल निकाले और सोचे भगवान का पांव धो ले, तब तक पांव ऊपर चला गया, पांव धो नहीं पाए। नाखून का अगला भाग केवल धो करके उस पानी को कमंडल में रखे, वही गंगा जी है। वहां से गंगा जी चली भगीरथ जी के प्रयास, यहीं से राम जी का नाम पड़ा पतित पावन। अहिल्या जी बोली प्रभु आप आज से पतित पावन है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। पतित पावन आप हो गए, अब यहाँ से आगे बढ़िएगा तो मिथिला में जाकर आप सीता राम बनिएगा। प्रभु आपका नाम पतित पावन है। राम जी बोले कि मुझे पता चला है कि आपके पति ने आपको शाप देकर पत्थर का बनाया था। अहिल्या जी बोली ये बात आपसे किसने बताई? राम जी बोले गुरु जी बोल रहे थे, विश्वामित्र जी। अहिल्या जी हाथ जोड़कर बोली प्रभु मुझे भी अब तक यही लग रहा था कि मेरे पति ने मुझे शाप दिया है, लेकिन अब जाकर पता चला है कि मेरे पति ने शाप नहीं दिया था, मेरे पति ने मेरा उद्धार किया था। प्रभु यदि शाप न मिला होता तो आज आपका दर्शन कैसे प्राप्त होता? देख बड़ी गूढ़ बात, श्रेष्ठ का क्रोध भी हमारा कल्याण करता है, ये प्रमाण है। श्रेष्ठ यदि हम पर क्रोधित भी हो जाए ना तो हमारा कल्याण ही कल्याण करेगा। गौतम ऋषि ने शाप दिया, उस शाप का परिणाम हुआ कि माँ अहिल्या को आज रघुनाथ जी का दर्शन प्राप्त हो गया। अहिल्या जी कहती प्रभु मैं मति से भोरी हूँ, मुझे मांगने का ढंग नहीं आता, लेकिन इतना मुझे पता है कि मेरे से अपराध क्यों हुआ था। राम जी बोले क्यों हुआ था अपराध? अहिल्या जी बोली प्रभु मेरा मन आपके चरणों में नहीं लगा था, इसलिए जगत में फंस गया था और मेरे से अपराध हो गया था। अब एक मेरी प्रार्थना है, विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगूं क्या वरदान चाहिए? पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुपा करे पाना। भगवान के चरण को कमल का पुष्प बताया गया। आप लोग स्तुति गाते हैं, नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंज यानी कमल। भंवरा फूल के चारों ओर मंडराता है दिन रात। क्यों मंडराता है? बोलिए। उस फूल के भीतर जो पराग है, रस है, उस रस को पीने के लिए भंवरा फूल के चारों ही मंडराता रहता है। माँ अहिल्या बोली प्रभु यदि आपके चरण कमल के पुष्प है
तो आज से आप अहल्या के मन को भंवरा बना दीजिए। प्रभु, मैं चाहती हूँ जैसे भंवरा पुष्प पर मंडराता है, आज से मेरा मन आपके चरण कमल पर मंडराता रहे, इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। राम जी बोले, चरण में ही क्यों? चरण में ही क्यों? अहिल्या जी बोली, प्रभु थोड़ा बहुत मुझे भी पता है, ये वही चरण है जिनसे गंगा जी प्रकट हुई है। गंगा जी का प्राकट्य शंकर जी की जटा से नहीं हुआ है। गंगा जी प्रकट हुई भगवान के दाहिने पांव के अंगूठे के नाखून से। दाहिने पांव के अंगूठे के नाखून से, नाखून के भी अग्र भाग से, अगले भाग से भगवान वामन को बांधने के लिए त्रिविक्रम रूप धारण किए थे। और जैसे भगवान का पांव ब्रह्मलोक को पार कर रहा था, ब्रह्मा जी कमंडल से जल निकाले और सोचे भगवान का पांव धो ले, तब तक पांव ऊपर चला गया, पांव धो नहीं पाए। नाखून का अगला भाग केवल धो करके उस पानी को कमंडल में रखे, वही गंगा जी है। वहां से गंगा जी चली भगीरथ जी के प्रयास। प्रभु ने माँ अहिल्या को गद्दी दी, विदा किया है, आगे चले। गंगा जी का पावन तट आया है, वहाँ स्नान हुआ है। स्नान करने के बाद भगवान ने दान देने का संकल्प लिया है। देखिए, जीवन में जहाँ भी जाइए कहीं तीर्थ में, तो कुछ दान देने का स्वभाव बनाइए। कितना दे महाराज? जितना भगवान ने आपको देने लायक बनाया है। आप मानते हैं जितना अपने को कि भगवान ने हमको इतना देने लायक बनाया है, उतना दान करना चाहिए। भगवान दान देने का संकल्प किए और आगे चले। वो बाबा कहते हैं, हर से चले मुनि वृंद सहाया, और रम्य सारा जप देखी, परन परन बिकसे बन जाता, समीर सदा सुखला, बनई न पर नगर निकाई, जहाँ जाई मन भाई भाई, बनई न पर नगर निकाई, जहाँ जाए मन भाई। जैसे राम जी, लक्ष्मण जी, विश्वामित्र जी आदि मुनिगण गंगा तट से आगे बढ़े, बहुत शीघ्र ही भगवान मिथिलापुरी में प्रवेश करते हैं। कहाँ प्रवेश करते हैं? मिथिलापुरी में। आइए भाव श्रद्धा से एक बार प्रयाग क्षेत्र में बैठे बैठे हम और आप मिथिला को प्रणाम करते हैं। बोलिए मिथिला धाम की जय। एक सुंदर आम के बगीचे को देख करके विश्वामित्र जी ने राम जी से पूछा कि राम जी क्या यहीं रहा जाए? सुंदर देखी एक अंवर आई, सब सुपास सब भांति सुहाई। राम जी बोले, जो आज्ञा गुरुदेव। तो उसी आम के बगीचे में विश्वामित्र जी, राम लक्ष्मण जी आदि मुनिगण रुक गए। कहाँ रुक गए? कहाँ रुक गए? आम के बगीचे में। यदि हम आपको अपने घर किसी कार्यक्रम में बुलाएं, तो आप आम के बगीचे में रुकिएगा कि सीधे मेरे घर आइएगा? बोलिए, आम के बगीचे में रुकिएगा या घर आइएगा? तो विश्वामित्र जी आम के बगीचे में काहे रुक गए? जनक जी के महल में जाना चाहिए था। दर्शन करिए। विश्वामित्र जी विचार किए कि निमंत्रण केवल मेरा है,
निमंत्रण नहीं है। और राम चले जाएंगे तो श्री चक्रवर्ती जी का अनादर होगा। तो विश्वामित्र जी सोचे राम को लेकर यहीं रुकता हूँ, जनक जी आएंगे तो परिचय कराऊंगा, और यदि उसके बाद जनक जी बोलेंगे कि नहीं इनको भी लेकर के चलिए, तब मैं राम जी को लेकर के महल में जाऊंगा, नहीं तो यहीं रुक जाऊंगा। आम के बगीचे में रुके हैं। सूचना पहुंची जनक जी महाराज के पास। क्या पहुंची? आप में से कितने लोग कवि कालिदास को जानते हैं? हाथ ऊपर करो। कालिदास का नाम कितने लोगों ने सुना? सब लोगों ने सुना। लेकिन उन अत्यंत योग्य कालिदास की मृत्यु कैसे हुई? ऐसी दर्दनाक मृत्यु किसी की नहीं हुई कभी। पहली बात तो कालिदास कोई ऐसा नहीं था कि बहुत बड़े ज्ञानी थे। वो तो एक बहुत विशिष्ट, एक योग्य, एक लड़की थी जिसको बहुत ज्ञान था। बड़े बड़े ब्राह्मण विद्वानों को हरा देती थी अपने शास्त्रार्थ में। और तब उसने ये घोषणा कर दी कि मुझको शास्त्रार्थ में जो हरा देगा मैं उसी से ब्याह कर लूंगी। तब कुछ ब्राह्मण जो है कहीं जा रहे थे, तब उन्होंने देखा कि एक वृक्ष पर एक आदमी बैठा है और पेड़ की डाल काट रहा है। वो कैसे काट रहा है? डाल पर बैठ करके डाल को काट रहा है, मतलब कटते ही नीचे गिरेगा। ब्राह्मणों ने विचार किया, वाह कितना बड़ा योग्य पुरुष दिखाया आज हमको। उसमें इतनी भी बुद्धि नहीं है कि वो जिस डाल पर बैठा उसी को काट रहा है। सब लोग विचार करने लगे, बोले ये जो ब्राह्मणी है उस नगर की, हमको बहुत हराती है। यदि उसका ब्याह इससे हो जाए तो हमारा बदला हो जाए। उसको नीचे बुलाया। उनका नाम कुछ और था पहले, ये कालिदास जी थे। उसको बोला तेरा ब्राह्मणों ने पहली पत्र भिजवा दिया। बोले अच्छा मुझे परास्त करे। तैयार हो गई युवती। बोले उनके शास्त्रार्थ का भावार्थ हम लोग करेंगे। वो जो भी आकृति बनाएंगे वो हम बता दिया करेंगे, ये कह रहे हैं ये। ब्राह्मण बोले अच्छा।